in a very simplified manner. Please introduce yourself. Yeah. My name is Dalip Nim. Dalip Nim. Yes, sir. I hail from Aligarh. I am the founder, member and General Secretary of Rashtriya Kisan Mazdoor Party. But I am here present today as a Dalit activist. And these are my personal views. It is not my party's views, so it should not be taken in that manner or construed in that manner. Today we have been speaking a lot about Muslims, scheduled caste, scheduled tribe, and Adivasi. All are affected. But we should take it to a broader base, which is the Shoshet and Vanchit people who will be affected. Now these are the people who are poor people who have no resources. They will be hit very hard by this act. Secondly, I would like to say that the whole concept which is being followed here is the RSS agenda, which is saffron radicalization of India, which is highly anti-constitutional and anti-democratic. This is what the view is. Now, I would like to mention here that our Muslim brethren have been very supportive of the Dalits. Always they have come forward, whether you talk about Ambedkar or anybody else. And I feel ashamed to say here through this forum that the Dalit are nurturing a psyche which is slavish psyche. In this context, I would say that the OBC and the Muslim brethren will have to take the lead. Dalit will not be able to take the lead. Dalit are very good. Intelligentsia of Dalit is very good. They sit in their drawing rooms and talk very big. So now issue is de-radicalization, and it has to start from the villages. We have to give a slogan back to the villages, Dehat se shuruaat. This is what we have to say. Now one small observation which I have to make here, that Shaleen Bagh, we have seen, is the rise of the She Brigade. But here I have noticed there is not even a single lady representative. It is, giving me a shock. It is giving me a shock. Nobody has observed. There are very big speakers here. I'm a very small fry, right? Intelligentsia is sitting. But please, I would request the chair, in future, there should be equal representation of the She Brigade here, right? I have made a letter here, which I'll give it to the chair, which I have inscribed all my views, which are quite vocal progressive. Thank you very much. Your point is very well taken, but we had invited quite a few sheep, but that she brigader, and what in fact the whole fight is for them now. But that is unfortunate. We could not pursue them to Shamwat. You told me I would go to Next time, sir. Next time. हाँ जी, मेरा नाम रत्नेश कादुलकर है। मैं इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट से हूँ और दिल्ली चलो आंदोलन जो 4 मार्च का होने वाला है उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ बुलेट्स पे ही बात करूंगा, समय अधिक बिल्कुल नहीं लूंगा। पहली चीज तो होती है कि स्ट्रेटेजी की बात, कि अगर हमको लड़ाई लड़ना है और स्ट्रेटेजी गलत हो तो हम कभी नहीं जीत सकते। और अब तक का जो हमारा अनुभव रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी बहुत गलत रही। खास करके हम उस प्रगतिशील मीडिया की बात करते हैं जो वाकई हमदर्द है वंचितों का, मजलूमों का, उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती ये हुई कि पूरे सीए एनआरसी को इस तरह प्रचारित किया गया कि ये मुस्लिम विरोधी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आम जन विरोधी है, लेकिन आज तक यही बात चल रही है। दुख की बात है कि हमारा अपना जो पर्चा है, इसमें भी 6th पॉइंट को आप देखेंगे, इसमें हम लोगों ने ये गलती कर दी है कि ये लिख दिया है कि जो लोग डाउटफुल होंगे, मुस्लिम होंगे तो उनके लिए दिक्कत है, हिंदू होंगे तो सीए से उनकी वापसी हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है, हर किसी का नुकसान होना है।
और गलती से जिसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं हिंदू हूं लेकिन मैं पाकिस्तान से आया हुआ हूं, जो कि यहाँ सदियों से रह रहा है, पीढ़ियों से रह रहा है, उसके साथ कैसा बर्ताव होगा इसके बारे में कोई कानून नहीं बना है अभी, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, हमारे प्रगतिशील और खासकर अभी आप लोग भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हमको इसका विरोध करना चाहिए, मुखालफत करना चाहिए। जब हमारे घर में वो डेटा लेने आए एनआरसी का, एमपीआर का, तो हम उनका सहयोग न करें। अब यहाँ पे समस्या है, समस्या यह है कि अगर मेरे घर में कोई एमपीआर का डेटा लेने आता है, कौन आएगा? वो मेरा कोई करीबी टीचर ही होगा स्कूल का, जो मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरी माँ का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, पूरे खानदान को जानता होगा। तो मैं सहयोग करूं या ना करूं, उसके पास वैसे डेटा चला जाएगा। लेकिन आपके साइन नहीं होंगे उसको। जी हाँ, बिल्कुल, वो एक जरूर सी बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। दूसरी चीज ये है, हाँ, साइन नहीं होने से अगर हम बचते हैं तो शायद बहुत अच्छी बात हो सकती है। अब साइन बना लिया तो वहां फंस जाएंगे और उसके बाद डी डाल दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, एक और चीज, बार बार हम लोग ये कहते हैं कि भाई दलितों का उतनी सहभागिता नहीं जितनी मुस्लिमों की है, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन हमको मुस्लिमों को यहां इस रूप में पेश करना चाहिए कि जब जनतंत्र पे खतरा आया तो सबसे पहले कोई कौम आई तो मुसलमान आई। इस रूप में हमको मुसलमानों को पेश करना चाहिए कि देश के लिए सबसे ज्यादा कोई लड़ रहा है तो आज मुसलमान लड़ रहा है। दूसरी बात, मॉब लिंचिंग की बात होती है। मॉब लिंचिंग लगातार मुसलमानों की हो रही है, हम ये देख रहे हैं। लेकिन जब दलितों की मॉब लिंचिंग होती है, इवन हमारा प्रगतिशील मीडिया और सोशल मीडिया में भी उसको वो कवरेज नहीं मिल पाता है जो कि मुसलमानों का मिलता है। तो इस तरह से हमारे रिश्ते दूर होते जाते हैं। एक छोटी सी बात कहूंगा, दो बातें और कहूंगा, छोटी छोटी है। हमारे कुछ साथी राजस्थान में दलित संगठन है, वो सोमवार को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमको मुस्लिमों से समर्थन नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा भाई अपने मौलवी का नंबर दे दीजिए, मैं अपने साथियों के साथ यहाँ रख दूंगा, शायद आपको कुछ सहयोग मिल जाए। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, देखिए आंदोलन हमारा इसलिए कमजोर हो रहा है कि जो हमारे मुद्दे हैं चाहे कितने भी सही हो, हमको स्पेस नहीं मिल पा रहा है अपनी बातें रखने के लिए। इससे हम सभी सहमत हैं। अब स्पेस कैसे लेंगे? स्पेस अगर हमको दिल्ली और बाकी शहरों में लेना है, सबसे बड़ी जगह होती है जो डीटीसी के बस स्टैंड होते हैं या मेट्रो के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। हमने अपने तौर पर पता किया तो एक ऐड का खर्चा 1 लाख रुपया होता है, 70,000 से लेकर 1 लाख तक, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम सब मिलजुल के कोशिश करें तो शायद हम इतनी फंड रेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार पब्लिक प्लेस पे हमारा मुद्दा आ गया तो चाहे आपका जो धर्म हो, जो जाति हो, जो वर्ग हो, आप समझेंगे कि हाँ वाकई ये आम जन को, भारतीय को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो उम्मीद है कि लोगों में जागरूकता आ सके। और मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हमारा 4 मार्च का एक प्रदर्शन है दिल्ली में, प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहा कि मेरा नेतृत्व नहीं है, इसमें हर कोई आ जाए, अपनी पहचान लेके आए। तो मेरा ये अनुरोध है कि हम सभी लोग आए, अलग अलग रंग, अलग अलग कपड़ों में आए, ताकि हमारे कपड़े देख के भी वो पहचाने कितनी अलग अलग वैरायटी है। बस इसी बात को करना चाहूंगा। ले लो, निपटाओ ये किताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने जहाँ बात की है मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। मेरी गुजारिश यही है कि हम सब सीए का जो ड्राफ्ट है उसको अच्छी तरह पढ़ें। आमतौर से देखा जाता है कि हमने बहुत सारे लोगों ने जो इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं उन्होंने भी सीए का ड्राफ्ट अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। अभी 4 दिन पहले बेंगलोर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, मुल्क के बहुत नेशनल लेवल के लीडर थे, वो वहाँ आए थे और दलित लीडर हैं। इसके साथ एक लिंगायत के स्वामी जी भी थे उस प्रोग्राम में। एक दिन पहले हमने उनको दोनों को होटल में बुलाकर उनके सामने प्रेजेंटेशन दिखाया, सीए की पूरी तफसीलात बताई। जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ उसको उससे मत छोड़े, मुसलमान उससे अलग हो गया इलीगल प्रेगनेंट होने की वजह से, और जो बाकी 6 मुल्कों में 3 मुल्कों के 6 कम्युनिटीज के लोग हैं वो लीगल मैरिज बन जाएंगे, ये उनको वहाँ आसानी हो जाएगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उनके लिए भी बराबर की मुश्किलात हैं। तो उनके सामने जब प्रेजेंटेशन दोनों के सामने किया गया तो वो ताज्जुब करने लगे। और मैं बगैर किसी एग्जैजरेशन भी कहता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि 70% उनको उसकी तफसीलात नहीं मालूम थी, उसकी संगीनी जो इससे एक्ट के अंदर 2019 के एक्ट के अंदर है उस संगीनी का उनको एम नहीं था। तो हमने उनसे फिर गुजारिश की तो उन्होंने ये कहा, लिंगायत के स्वामी जी ने कहा
कि हम सारी लिंगायत के सारे मठों के स्वामीजी को जमा करेंगे। आप ये तफसीलात उनके सामने पेश करें। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जामदार साहब जो IAS ऑफिसर हैं उनसे बात की हुई है और वो पूरी कम्युनिटी के लिंगायत स्वामीजी को एक जगह जमा करने वाले हैं। ये एक काम अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हम कर्नाटक में शुरू करने जा रहे हैं। हमारी ये राय यही है कि इस मौके पर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उनके मजहबी रहनुमाओं तक इस बात को पहुँचाया जाए। मजहबी रहनुमाओं के जरिए से वो अपनी कम्युनिटी तक बात को पहुँचाए कि ये SCA का कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें हम सब भी बराबर के फंसने वाले हैं, बराबर से इसमें हम नुकसान उठाने वाले हैं। ये बात मजहबी रहनुमाओं के जरिए से पहुँचाई जाए। ये अगर काम हो सकता है उसके वीडियो और ऑडियो क्लिप्स वीडियो क्लिप बनाकर उनकी कम्युनिटीज में इसको वायरल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अवाम भी समझेगी। और आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं 90% मुसलमान रहते हैं उस प्रोटेस्ट पे। स्पीकर्स हालांकि बरादरान वतन में से भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स में भी स्पीकर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन पब्लिक ऑडियंस जो होती है अक्सर 90% मुसलमान होते हैं। ये गोया कि फिर वही बात हो जाएगी आइसोलेशन और फिर ये पोलराइजेशन की बात हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम बराबर हों, ऑडियंस मुसलमान भी हों और बरादरान वतन सबकी सब मौजूद हो तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे यहाँ एक मशवरा ये भी 2-3 दिनों से आपस में हो रहा था, कुछ उलमा बैठकर मशवरा कर रहे थे कि कर्नाटक के दलित और लिंगायत और वकीलिगास इनके स्वामीजियों से हम मुलाकात करेंगे और बेंगलोर में 40-50 हज़ार लोगों का एक प्रोग्राम करेंगे। इसमें मुसलमान नहीं होंगे, सारे के सारे दलित होंगे, वकीलिगास होंगे, लिंगायत के लोग भी होंगे, उनके स्वामीजी भी होंगे, स्टेज पर लोग होंगे और सिर्फ उन्हीं को जमा करके उनके जरिए से NPR के बैकवर्ड की आवाज लगाएंगे। तो ये अगर मैसेज इस तरह का जाता है तो फिर इसका बड़ा अच्छा असर पड़ सकता है। ऐसे काम अगर पूरे मुल्क में हो तो ज्यादा मुनासिब इंशाअल्लाह। हरिकेश बहादुर साहब, हरिकेश बहादुर साहब, हेलो, दयाकर साहब बोलिए, उसके बाद बहादुर साहब हो जाएंगे। నేను తెలుగులో చెప్తా, ట్రాన్స్లేషన్ ఇందులో 2 minutes only. Your good name? Adayt Dayakar, Manavanaadu National President. Yes, sir. భాజపా ఇష్టం లేని రాజ్యం వచ్చింది. भाजपा को जो नहीं चाहती थी वो राज्य है यहाँ मुल्क। సావర్కర్ నిజాద సిద్ధాంతాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. सावरकर का जो सोच है डुअल सिस्टम, 2 जाति का सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। అందుకోసమే కొత్త చట్టం ప్రజలను విభజించడానికి తెచ్చింది. मुल्क को डिवाइड करने के लिए नया एक्ट लाया। CAA, NPR, NRC ప్రజల్ని విడగొట్టలేదు కానీ ప్రజల మధ్యన వైరుధ్యాలు తీసుకొస్తారు. डिवीजन तो नहीं ला सकते मगर वो डिवाइड नहीं कर सकते, मगर गलत फहमी फेस कर सकते। वो पोलराइजेशन ऑफ द हिंदू वोट्स इज द अल्टीमेट गोल है. वो समझ गए। इसीलिए దానికోసం ప్రోగ్రామ్స్ కావాలి భాషణ में. इसीलिए हम क्या कर रहे हैं प्रोग्राम తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికీ ఒక 20 మీటింగ్స్ మేము SC ST OBC విత్ జమాయత్ ఉలమా ఆర్గనైజేషన్. अब तक तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 20 मीटिंग से ज्यादा SC ST OBC जो मीटिंग की ఈ రోజు రాయచోటి మీటింగ్ ఉంది, దీని కొరకు వచ్చినాం. आज रायचोटी में मोर देन 50,000 का गैदरिंग। రేపు सूर्यापेट, एल्लुंडी, वरंगल, मार्च 1 के लिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा मीटिंग है 30,000 का एट काकीनाडा. आप तो हिंदी अच्छी बोल रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम है ना. मार्च 1 में 30,000 का SC ST OBC मीटिंग है. मदानी साहब को बुलाने के इधर आए हैं ये मीटिंग पार्टिसिपेट करने के लिए. और एक ये दलित का मीटिंग है 4 मार्च 14 में खम्मम में गिरिजन का ट्राइबल का आदिवासी.
మీరేమంటున్నా ఢిల్లీలో పెద్ద బిగ్ మీటింగ్ లో టాప్ టు బాటమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ బెటర్ టు గవర్నమెంట్ నౌ. దేర్ ఇస్ నో direction to the people who are fighting in the ground level. ग्राउंड लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों को कॉन्फ्रेंस लेने के लिए दिल्ली का दौरा पे होना, स्टेट लेवल पे एक मीटिंग होना। बिफोर ముందు ఏప్రిల్ 1 वो बोल रहा है दलित एंड ट्राइबल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। ओबीसी भी वो जैसा ओसीबी ब्राह्मणवाद भी है, मनवाद नहीं है। एक बड़ा मीटिंग है तो एक्सप्रेशन इज बिग नाउ. We want expression in bigger way. Why? Because they won't go to amend or any in the acts. Why? Because they want always dividing the people through this acts only. This is the beginning only. Tomorrow we'll say big moving to the Bajapa, movie of the Bajapa. So we want programs only. We talk with programs only. That's why I am participating here. एक जमायत उलेमा संघाలు అన్ని కలిసి కంబైన్డ్ డైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మార్చ్ ఫిబ్రవరి 10 నుంచి మొదలు పెట్టిన కొనసాగుతుంది. वो हम वहाँ पे कमेंट दलित आदिवासी ओबीसी सेडोसिस को जनगणना और सब मिलकर कमेंट डाइनिंग प्रोग्राम एक थाली में खाने का प्रोग्राम गाँव बेसिस पे चल रहा है। मार्च 10 तारीख से वो फरवरी 10 तारीख से मार्च 10 तारीख तक चलेगा और बिफोर 25 ऑफ मार्च वो यूनिटी का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और 1 तारीख से जो एनआरपी आने वाली है उसके खिलाफ वहाँ गांव के बीच में ठहर के सब मिलके उसको बाइकाट करने का प्रोग्राम प्लान है। एक कल्चरल रेवोल्यूशन का प्रोग्राम है और एक बात है मानववाद बोले तो वही द पीपल ऑफ इंडिया, मानववाद वाले तो डिवाइडिंग पर्सन, ए फाइट बिटवीन दी मानववाद एंड मानववाद. दैट्स व्हाई వాళ్ళని డిబేట్ చేయాలి, एक्सपोज చేయాలి, ఎవరైతే एक्सपोज करना और उसका जो असली मकसद है वो जनता के सामने रखना होता है. सो साउथ इंडिया में वेरी लो है प्रोग्राम्स. प्लीज कांसंट्रेट ऑन साउथ इंडिया. साउथ ఇండియాలో తక్కువ ఉంది ప్రోగ్రామ్, నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి you concentrate South India also. Thank you very much. Ansari sir, I am Ansari sir. बहुत शुक्रिया. बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें तो नहीं समझता कि मैं कोई लेकिन उसका जरूर मैं अभी करूँगा बात कि जो सीए पे तमाम हरकत हो रही है वो तो एस्टैब्लिश हो चुका है कि इसमें ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है और मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है. खदशा इस बात का है कि जब हुकूमत स्ट्रांग होती है तो जाहिर फोर्स भी हुई जब लेकिन इसकी वजह से इसके ऊपर स्टे मिला. कश्मीर के मामले में कुछ नहीं फायदा हो रहा है. तो बस ये कि हम ये देखते हैं कि ये मामला चूँकि कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो अभी उम्मीद कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई खाते साथ जो है वो फैसले आएंगे. खास करके देखते हुए कि कोई रूल चीज जगहों पे ये शाहीन बाग की तरह दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो बहुत सारी बातें पूरे मुल्क में हो रही हैं और वो ये भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम कोई ताकत नहीं आएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. तो हुकूमत को इस बात पर खर्चा है कि अब ये जो स्टेटिस्टिक्स आंकड़े जो इकट्ठा होते हैं सेंसस के वो 10 साल तक इस्लामिक और सोशल प्लानिंग में काम आते हैं. तो अब ऐसा लग रहा है कि इनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से तमाम डेवलपमेंट की जो मंसूबे बनते हैं उससे मुतासिर होंगे. तो अब इस बात को अभी गवर्नमेंट ने वादे नहीं किया है कि इसको कैसे टैकल करें, लेकिन दर्ज इस बात का बहुत हो गया है कि लोगों को हुकूमत को इन्फॉर्मेशन एक तो सही नहीं मिलेगी, इनएक्यूरेट मिलेगी, मिसलीडिंग मिलेगी, जिससे आने वाले 10 सालों में किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं हो पाएगी. जो ये बात आपसे ये बात सही है कि कोऑपरेशन काफ़ी जगह से नहीं मिल रहा है. ये इक़्तिदार की वजह से दूसरी कि
6 स्टेट्स ने कहा है कि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामले में, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो एक खौफ का माहौल है वो शायद बहुत बड़ा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक काफ़ी अक्सरियत अक्रॉस जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ की नहीं है माशाल्लाह, यहाँ पे भाइयों ने कहा कि और तमाम कम्युनिटी जो है इसके साथ लगी हुई है और उसको साथ दे रही हैं, तो ये इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कहीं सोचना होगा। हालांकि हुकूमत वजीद है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी और उसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये जिसके ऊपर आपको गौर करना है वो ये कि हमारे यहाँ जो सियासी पार्टी हैं उनकी एक ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन चुकी है कि मुस्लिम पाकिस्तान कश्मीर को भी सेंट्रल मुद्दा बना करके तमाम जगह जो है इलेक्शन करें या लोगों को बायस करें ताकि किसी तरह का पोलराइजेशन हो सके, ताकि आइसोलेशन हो सके। और ये एक हमारी जमहूरियत का मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही एक खराब स्ट्रेटजी है, लेकिन हमने ये देखा है कि कांग्रेस ने भी इसी तरह से किया। अयोध्या में 40 खुलवाया, वहाँ पे जाकर शिलान्यास किया, संस्थापन किया। फिर इसके बाद अगर सीए की बात करें तो आसाम में कार्ड हुआ और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दाखिल देनी होगी और एनआरसी बनी, तो चाहे वो ये तो कांग्रेस की बात नहीं, लेकिन अगर अब आप देखें बीजेपी की भी तो अभी इलेक्शन हुए, कोई कहता है गोली मारो, कोई कहता है कि ये इनको ये जो इलेक्शन हो रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा है, ये नहीं कहते कि ये हिंदुस्तान का या ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका से हो रहा है। हर क्रम में जो है वो आता है तो सिर्फ इसका नाम आता है। और मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि कितनी बदमखी हुई, चाहे वारिस पठान ने साहब ने हो गया, तो ये हमारी जो पोलिटिकल पार्टी है वो इन्होंने मुस्लिम्स को, दलित्स को और ये पाकिस्तान को ही मुद्दा बना करके ये पोलराइज कर रही है, आइसोलेट कर रही है। असल में यही मुद्दा है जिसकी वजह से आपने ट्रिपल तलाक की बात देखी, आपने अयोध्या की बात देखी, आपने कश्मीर की बात देखी, या इससे पहले जो काउ प्रोटेक्शन से रिलेटेड तमाम बातें हैं या एनिमल रेट से रिलेटेड बातें हैं, तमाम मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान, मुसलमान, कश्मीर को ही टच करता है। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर आपको सोचना होगा कि हम कैसे इसको डील करें। और इसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जबकि तमाम और पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी तरह से शामिल हो जाती हैं और इसका खमियाजा जो है नुकसान जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को खास करके करना पड़ता है। पहली बात तो ये मैं कहूँगा, ये जो स्ट्रेटजी है इस स्ट्रेटजी को चेंज करने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये जाहिर है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो चुका है, बहुत ही नेशन वाइड हो चुका है। इसको तो इस तरह से रोकना है और ये रुक सकेगा हमारी वजह से, और ये जो चल चुका है ये तो चलेगा। और मैं आपसे बस इस बात को दोबारा व्यक्त करूँगा कि हुकूमत इस वक्त पहली हुई है कि हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, डेटा नहीं आएगा, रिलायबल नहीं होगा, तो इसका क्या असर होगा। और दुनिया के तमाम और ममालिक ने भी इसमें सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये CAA लागू हो गया तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे और उसका जो था असर दुनिया के तमाम मुल्कों पर होगा। तो ये जो मैं समझ रहा हूँ ये काम जो है इतना डायरेक्टिव, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि ये टास्क मुश्किल है इम्प्लीमेंट होना, और लोगों की इसके ऊपर कोऑपरेशन नहीं होगी तो फिर काम होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो माहौल है वो खौफ का है, डराने का है, लोगों को डराने का है। बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे लिए साथी ने यहाँ कहा कि हमारी इकॉनमी जो है वो सोशल सिचुएशन खराब है और तमाम तरह की कोशिश हो रही है कि असल मुद्दों से, चाहे वो माशियत का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो या बेहतरी का हो, उससे हटा करके ये किया जा रहा है। जो एक हमें सोचना ये होगा कि अब ये जो पूरे मुल्क में हो रही है वो एक ऐसा सिद्ध और ऐसा डायरेक्शन ले रही है और इसको मजबूर कर रही है कि हमें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उसको चेंज किया जाए। और दिल्ली ने दिखा दिया है कि चेंज हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि उसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर हमें अटैक करना है और उसी को चेंज करना है। शुक्रिया। राकेश बहादुर साहब, संक्षेप में प्लीज। हेलो, ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम राकेश बहादुर है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पद पर रिटायर हुआ हूँ और आजकल मैं ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ। अशोक भारती जी हमारे प्रेसिडेंट हैं।
जो जिस तरह की आज बात चल रही है उस तरह का प्रयास हमने पूर्व में भी किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमने 2008 के अंदर दलित ईसाई सम्मेलन चंडीगढ़ में किया था और 2009 में कैथल में दलित मुस्लिम सम्मेलन किया था। और मदनी साहब जानते हैं 2 सितंबर को हमने पंचकुला के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें आप लोग लेकर के आए थे। तो और ये जो अभी हमारे पास हमारे दरख्वास्त ये है कि आप सजेशन दीजिए, सजेशन करना क्या चाहिए, बस इसके बारे में बात होगी। ठीक है, सजेशंस ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि शायद हमारी जो लड़ाई आरएसएस और भाजपा से है। मैं एक व्यवहारिक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे जो दलित संगठन है, जो दलित नेता है, वो हम बात करते हैं कि ये दलित संगठन, ये दलित नेता, ये आदिवासी संगठन, ये आदिवासी नेता, ये मुस्लिम संगठन, ये मुस्लिम नेता कहीं भाजपा या आरएसएस के लिए काम तो नहीं कर रहे। तो ये इतनी बड़ी दुविधा है, उससे हमें कई बार ऐसा लगता है, कई बार हम टेलीविजन पर देखते हैं कि कई मौलाना भाजपा और आरएसएस की वकालत करते नजर आते हैं। तो इस स्थिति से भी हमें कैसे निपटना होगा। तो मैं किसी का व्यक्ति, किसी का इस दलित नेता या आदिवासी नेता या मुस्लिम नेता या क्रिश्चियन नेता का नाम इंगित नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सबके मन के अंदर है कि वो लोग किस तरह से, जो हमें लगता है कि जो हमारी ताकत है, जिस तरह से मदनी साहब और फारूकी साहब जो एक पूरे देश के अंदर, जो पूरे देश के जो अच्छे दलित नेता है, आदिवासी नेता है और क्रिश्चियंस के नेता है और मुस्लिम नेता है, कि उनका गठजोड़ बन करके एक पूरी ताकत के साथ जो हिंदूवादी व्यवस्था है जो हमें थ्रेट कर रही है, उसका कैसे हम जवाब दे सके। तो उसमें मैं एक सजेशन ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कालका के अंदर देखा है, मैं व्यवहारिक बात करना चाहता हूं, मैं हमेशा व्यवहारिक बात करता हूं, मैं भाषणबाजी में विश्वास नहीं करता। कालका के अंदर जब हमने सीए और एनपीआर और एनआरसी के लिए ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से हमने एक जुलूस निकाला, तो वहां के जो हमारे मुस्लिम नेता थे या मुस्लिम भाईचारा था, उन्होंने आने से मना कर दिया। वो इतने डरे हुए हैं, कहते कि हम वैसे सपोर्ट करेंगे आपके, लेकिन आपके साथ नहीं आएंगे। तो ये भी चिंता का विषय है कि उनको किस तरह से हम उनको ताकत दें, उनको बल दें कि वो हमारे साथ मिलकर के आज देश का पूरा जो दलित है, खासकर मैं ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की बात करता हूँ, वो पूरा का पूरा इस इशू के लिए जो है हमारे मुस्लिम भाईचारा के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिस्टर एमजे खान साहब, देखिए भाई, एक हाथ तो ना गई है माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आपके आने का। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मदनी साहब को मुबारकबाद, आपने मीटिंग कन्वीन किया, लेकिन शिकायत भी बहुत देर से कन्वीन किया। 2 महीने का जो एजुकेशन चल रहा है, जो लिवरेज मिला था, जो निगोशिएशन पावर मिली थी, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। एनीवे, सुबह से सेंटिमेंट्स ऑफ कंसर्न्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ सॉलिडारिटी काफ़ी एक्सप्रेस हुई हैं, पर मेरा ऐसा सबमिशन है कि एक्शंस के अराउंड किस तरीके से हम डिस्कशन अभी करें तो आगे के डिस्कोर्सेस क्या हो सकते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या हो सकता है, एजुकेशनल डिस्कोर्स क्या हो सकता है, लीगल डिस्कोर्स क्या हो सकता है, गवर्नमेंट इंगेजमेंट क्या हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एडवोकेसी पे किस तरीके से काम हो सकता है। इस चीज को एनालाइज करने की जरूरत है कि पिछले कुछ सालों में ज्यादा कम्युनलिज्म बढ़ गई है, या ज्यादा लोग कम्युनल हो गए हैं, या ज्यादा कम्युनल और ज्यादा कम्युनल, या कम्युनल और ज्यादा कम्युनल हो गए हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं देख पा रहा हूँ, सोशल मीडिया बहुत एनालाइज करता हूँ कि बिलीफ क्रिएट किया जा रहा है फेक डेटा और फेक स्टोरीज प्लांट करके। कोई कम्युनल नहीं होगा, लेकिन अगर उसको फेक स्टोरीज, फेक डेटा प्लांट कर करके उसको एजिटेट किया जाए, जैसे सबसे बड़ा झूठ जो फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला गया, जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन अब तक आ जाना चाहिए था, अपोजिशन के पार्टी से नहीं आया है, कि 23% हिंदू पाकिस्तान में मार मार के माइनॉरिटी को 3% पे ले आए हैं। सेकुलर से सेकुलर हिंदू जब बार बार ये चीज रिपीट किया आती है तो उसके मन में कहीं बैठ जाता है कि भाई ऐसा हो तो सरकार सही कर रही। तो जो क्वार्टर ट्रूथ बोल के 100% ट्रूथ बना के पेश किया जा रहा है कि सीए इज ऑल अबाउट
गिविंग शेल्टर टू द परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, जो मसाला डाल के उनके साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, समंदर में फेंके गए, परसिक्यूशन, ये सब, तो यहाँ का एक वाइडर सपोर्ट बेस जनरेट हो जाता है गवर्नमेंट के इस क्वार्टर टूथ को जो पेश किया जा रहा है। इसी तरीके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से स्टोरी कहीं से भी शुरू होती है, आखिर में उसको कहीं ना कहीं मुस्लिम रूलर से और सबके टॉर्चर, परसिक्यूशन, उस सबसे जोड़ जाड़ के आखिर में जब फुल स्टॉप लगता है तब तक आदमी पढ़ते पढ़ते माइंड मेकअप कर जाता है कि मुस्लिम्स आर एविल एंड इन द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट। तो जब तक फैक्ट्स का काउंटर नहीं करेंगे तब तक कितना ही कोशिश कर लें, सेकुलर से सेकुलर हमने अपने फ्रेंड्स को देखा है कि पिछले कुछ सालों में उस तरफ, क्योंकि वो उस तरीके की स्टोरी और फैक्ट्स जो है कंज्यूम कराए जा रहे हैं। तो लाइन नंबर 1 कि 23% को मार मार के 3% ले आए हैं। द फैक्ट 3.44% 1951 के सेंसस में थी, आज बढ़ के माइनॉरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तान में 3.9% हुई है। लाइन नंबर 2, पाकिस्तान की जो परसिक्यूशन की लगातार स्टोरी आ रही है जिससे यहाँ माइंड हेजिटेट किए जा रहे हैं, उसको कोई डिफेंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक माह पे कोई इंस्टांस होती तो यहाँ अखबार में छपती और छपता भी चाहिए। साल का एनालाइज कर लो, 15 से 18 इंसिडेंट्स होती हैं। शायद पिछले 25 सालों में पाकिस्तान में जितने इंसिडेंट एंटी माइनॉरिटी नहीं होंगी, यहाँ एक सिंगल डे में होती हैं अगर कोई कंपाइल करे। तो जब तक ये, लेकिन होता है कि पढ़े लिखे बहुत IAS फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी कहते हैं यार देखो कितना प्रोसिक्यूशन हो रहा है। मैंने एक से पूछा कि आपने यहाँ एक दिन का एनालाइज कर लो। तो जब तक ये बिलीफ एडमिनिस्टर किया जा रहा है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जो है अभी आपके साथ नहीं खड़े क्योंकि उनको सीए के बारे में शायद हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे लोग बैठे उनको नहीं समझ में। जब डिस्कशन को तो मालूम होता है कि सामने वाला भी, मैं सेकुलर मिजाज के पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ जिनको शायद ये इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोगों को वहां पे फर्ज बनता है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, किस तरीके से जो करेक्ट पर्सपेक्टिव्स का है, जो इम्प्लीकेशंस है, उनको सही वर्डिंग्स में। आज सीधे सीधे टेलीविजन वाला पूछता है एजिटेटिंग लोगों से, भी आप क्यों एजिटेट कर रहे हो? तो बहुत हिंदू बेचारे इतने प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उनको अगर सिटीजनशिप दे रहे हैं, आपको क्या एतराज है? तो कोई उसका सीधा सीधा एक लाइन में जवाब नहीं हो पा रहा है। एज अ रिजल्ट जो इफेक्टिवली हम लोग कम्युनिकेशन डाल सकते हैं पब्लिक डोमेन में, जिससे परसेप्शन मैनेज कर सकते हैं, वो चीज नहीं हो पा रही है। दैट इज द रिजल्ट दैट गवर्नमेंट इज गेटिंग वाइडर सपोर्ट अबाउट सीए, नोइंग, मोस्ट ऑफ अस नोइंग फुली वेल कि हाउ डेंजरस इट इज, लेकिन पुटिंग दैट इनटू फ्यू वर्ड्स टू टेल द पीपल कि ये कितना डेंजरस है, तो वो चीज नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एक्शन ओरिएंटेड हम लोग एजेंडा, जैसे पिछले 2 महीनों से बार बार मैं इस चीज को जानने वाले लोगों से कह रहा हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो के पब्लिक डोमेन में फैक्ट्स डाले जाए टू काउंटर द प्रोपेगेंडा, ताकि जो न्यूट्रल है, सेकुलर है, कम से कम उनके मन में जो बैठे कन्विंस हो जाए। नहीं तो ये सबसे बड़ा डेंजरस हो रहा है कि बार बार झूठ बोला जाए। झूठ नंबर 1। झूठ नंबर 2 कि ये पार्टीशन की लीगेसी थे, ये पैक्ट था, उसके तहत इसको बढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट लाई पार्टीशन की लीगेसी में अफगानिस्तान नहीं था। लाइन नंबर 3 कि ये 4 लोगों जो शामिल किया है, अगर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन से मोहब्बत है तो सबसे ज्यादा नेपाल में क्रिश्चियन प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, नेपाल को शामिल नहीं किया। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट जो है तिब्बत में प्रोसिक्यूट हो रहे, चाइना को शामिल नहीं किया। सबसे ज्यादा हिंदू अगर दुनिया में कहीं प्रोसिक्यूट हुए हैं तो श्रीलंका में 17% की पॉपुलेशन 8.9% रह गई है, श्रीलंका को शामिल नहीं किया। तो बार बार तमाम सारे झूठ बोले जा रहे हैं, उनको कंज्यूम कराया जा रहा है कि काउंटर जो पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए तो उसमें कहीं कमी आ रही है। देयरफॉर मेरा सजेशन ये है कि ये बेचारे जो एजिटेट कर रहे हैं वो आपको एक निगोशिएटिंग पावर दे रहे हैं, लेकिन उसका हम लोग इस्तेमाल करके जो एक्शंस जमीन पे उतारने चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो देयरफॉर गवर्नमेंट से इंगेजमेंट का क्या हम लोगों का पर्सपेक्टिव हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी से इंगेजमेंट का क्या हो सकता है और क्या स्टेप्स उस पर डिफाइन हो सकते हैं। नंबर 3 एजुकेशनल कोर्स क्या हो सकता है? क्या जंतर मंतर में बैठ के आज पूरे देश में जितने लोग बैठे हैं, अगर उसका 10%, 5%, 2% लोग जंतर मंतर में बैठे तो शायद उसका और ज्यादा असर आएगा। और उसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है सही वर्ड में जाना चाहिए। फिर लेजिस्लेशन की जो प्रिविलेज मोशन पेश होना चाहिए, 2 प्रिविलेज मोशन बहुत स्पेसिफिक बन सकते हैं, उस पर चर्चा होने की जरूरत है। फिर कैसे सोशल डिस्कोर्स हम लोगों को वाइडन करना है, अपना सपोर्ट बेस किस तरीके से इंगेज करना है बाकी सोशल ग्रुपिंग्स का। हजरत ने रिलीजियस लीडर्स के बारे में कहा, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पे कर रहा हूँ कि जो सोशल ग्रुप्स हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जितना ज्यादा रोल बढ़ता जा रहा है, हाउ वी आर एबल टू लिवरेज अपॉन द सोशल मीडिया टूल्स टू स्प्रेड द करेक्ट अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो मुझे लगता है हजरत, मैं इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, बीच में मुझे
मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूं आप सब लोगों से कि इन 5-6 एजेंडा के अराउंड एंड लास्ट जो सबसे बड़ा कंसर्न है एनपीआर पे डिसीजन लेने का, क्या इस मीटिंग में डिसीजन लिया जा सकता है या कोई बाद में मीटिंग कंसल्टेशन और करके एनपीआर में हमारा क्या एक्सटेंड होने जा रहा है? अगर कोऑपरेट करना है तो कैसे हेल्प करें अपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा उसमें सब लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके दे पाए, और अगर बाइकआउट करना है कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग बाइकआउट करें। लेकिन बाइकआउट के इम्प्लीकेशन में एनालाइज करके मैं बता सकता हूं, अगर करना ही तो उससे पहले इट मस्ट बी प्रेसिडेड बाय अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशंस और ए पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट टू टेल पीपल कि हम क्यों कर रहे हैं बाइकआउट। तब जब सपोर्ट बेस आपके फेवर में खड़ा होगा। अगर आपने कम्युनिकेशन प्रोसीड नहीं करता इस डिसीजन को तो मेरी समझ से इट विल बी मोर डेंजरस टू बाइकआउट इट, इट विल बी बेटर द अदर वे अराउंड। थैंक यू वेरी मच। सैयद शफीउल्लाह फ्रॉम कर्नाटक। कर्नाटक में एनपीआर और सीए एनआरसी के जब से एहतजाजात शुरू हुए हैं उस वक्त से हमारे एक बुजुर्ग हस्ती सारे एहतजाजों में हिस्सा ले रहे हैं। उनका नाम है एच.एस. दुरैस्वामी और वो 103 साल हैं और 103 साल की उम्र में हमारा साथ दे रहे हैं हर एहतजाज में। उनके चंद लाइन से यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ। वो महात्मा गांधी जी के साथ में जद्दोजहद आजादी में हिस्सा ले चुके हैं। उनका ये कहना है कि आजादी के वक्त जो देखा था उसके बाद अब जो हुआ है ये बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, और उनका कहना यह है कि हरगिज इस आंदोलन को उस वक्त तक छोड़ना नहीं चाहिए जब तक इस सोच की हुकूमत चली ना जाए 2024 तक। अगर सिर्फ एनसीआर और सीएए तक महदूद कर लिया जाए तो उसके बाद वो कोई दूसरा कानून नहीं लाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनका ये कहना है। यहाँ एक किताब है जो आरएसएस की किताब है, आरएसएस की कुतुब खाने से मैंने खरीदी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन। इसके सिर्फ 2 लाइन में पढ़ता हूँ, शायद आपको सोच के बारे में मालूम हो जाए। वी हैव टू स्टार्ट ए न्यू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। द हिंदू नेशन हैज टू break the shackles of slavery and earn real freedom. This is our first national goal. After securing freedom, we have to set up our own national state, a Hindu nation state. We have to discard the present Indian constitution and give ourselves a new constitution of our own. Then we have to change almost all laws and policies and replace them by enacting new ones. ये रोजाना वो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, बिक रही है हजारों की तादाद में, और वो सारे इस पर यकीन रख के काम कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के इंटॉक्सिकेशन को हिंदुस्तान से खत्म ना किया जाए तो कोई काम नहीं होगा, उसको खत्म करके ही दम लेंगे। लिहाजा ये सोच की पहली सीढ़ी के तौर पर इन्होंने शुरू किया है ये काम, और ये सीढ़ी खत्म होगी तो दूसरी सीढ़ी नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। बेहतर है कि 2024 तक ये सारे आंदोलन आगे बढ़ाए जाएं, और इसके लिए हिंदू मुसलमान सब मिलकर आगे करें। हमारे 2 दलित लीडर्स कर्नाटक के आए हैं जो बहुत सारे आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, और भास्कर प्रसाद साहब भी अपने ख्याल जाहिर करना चाहेंगे। शुक्रिया। मैं बस बुलेट पॉइंट में एक कॉन्टेक्स्ट और जो है क्या मशवरा है मैं आपको देना चाहूँगा। हिंदुस्तान की तारीख में जो अभी हो रहा है बहुत अजूबा है और हमें ये मानना चाहिए, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसका असर जो है ज़मीन पर ही भी, जो हिंदुस्तान के बाहर भी काफ़ी कुछ हो रहा है। 1992 और 93 के बाद मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ कहना चाहूँगा कि इतना डिप्लोमेटिक आइसोलेशन 73 साल की हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जितना डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हिंदुस्तान का इंटरनेशनली इस वक्त हुआ है। 92-93 के बाद पहली मरतबा इस तरह के हालात हैं। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के अपने टिकट के लिए, सदारती टिकट की दावेदारी के लिए, ना कि सदर की हैसियत से। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। इस तरह के इलेक्शन कैंपेन के लिए वहाँ के दावेदार पूरी दुनिया में घूमते हैं, इसराइल भी जाएंगे और मुल्कों में भी जाएंगे, तो हमें उससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मशवरा ये है कि हमारे यहाँ जो इंगेजमेंट का मसला है आवाम के भी, हम ये सोचें कि क्लैरिटी नहीं है एनपीआर के मसले पे। एनपीआर के मसले पे एनआरसी और सीए पे तो बहुत साफ रुख है, पर एनपीआर के मसले पे भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका बहुत साफ ये है कि वो बॉयकॉट करेंगे। अब हमें उनको किस तरह से सपोर्ट करनी है उसके बारे में हमें ख्याल करना चाहिए। उसका तरीका एक ये हो सकता है
एक जो तरीका अभी चल रहा है कि एजिटेशन के जरिए उनके ऊपर जो नॉन बीजेपी स्टेट हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। तमाम हमारे दोस्त यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप एनपीआर पे अपने काबीना में अपने जो कैबिनेट है उसमें आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आए, नोटिफिकेशन जारी करें। उसके साथ साथ मुझे ये लगता है आज जितने भी नॉन बीजेपी जो हुकूमतें हैं, एजिटेशन के साथ साथ बंद कमरे में, खुले कमरे में हमें नेगोशिएशन डायलॉग स्टार्ट करने चाहिए। डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजिटेशनल मोड और डायलॉग नॉन बीजेपी स्टेट जितने भी रूलिंग स्टेट हैं वहाँ अभी उस तरह से नहीं शुरू हुए हैं। एजिटेशन के अलावा डायलॉग जिसकी हमें ज़रूरत मालूम होती है। और अगर हिंदुस्तान में जैसे कई लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये जो नॉन बीजेपी जो स्टेट हैं वो मान जाते हैं एनपीआर करने से, तो जो डेटा बीजेपी अगर कलेक्ट भी करती है अपने रूलिंग स्टेट में वो बेमानी हो जाता है, उसके कोई मायने नहीं रहते हैं। तो डायलॉग होना चाहिए अपोजिशन पार्टी से। मैं एक सिर्फ ये दो और अपने बात रखूं इस इलेक्शंस 2024 हुए, दिल्ली का भी इलेक्शन, और इलेक्शन से कोई बहुत बड़ी जीत या इससे आरएसएस को बहुत नुकसान नहीं पहुंच पा रहा है। आरएसएस को इससे तक़वियत ही मिल रही है क्योंकि जो लोग जीत के भी आ रहे हैं उसी जहन की तरह की चीज़ों को फरोग दे रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ पा रही है। ये तो हिंदुस्तान में इस तरह की जो तहरीक पैदा हो गई है शायद उसको जो है चुनौती दे, और वो जहनी तौर पर एक तरह से एक मुकाबला कर रहा है। और ये जो तहरीक है, दो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें खुले दिलों के साथ आना चाहिए, बड़े दिलों के साथ आना चाहिए, शर्तों के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए। इस तरह की कोशिशें जो वहाँ महमूद मदनी साहब या कमाल फारूकी साहब ने यहाँ बुलाई है, उससे पहले मुश्तबा फारूक साहब ने ये कोशिश की है और दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम लोग अपनी शर्तों के साथ आ रहे हैं उस वक्त जब हमारे इस मूवमेंट में कोई स्टेक नहीं है, ये आवाम का आंदोलन है। तो हम अपनी शर्तों के साथ ना आए जो हम अलग अलग कंडीशंस की, भाई रोजगार का मसला लाओ, आदिवासियों का इसका, इस वक्त ये तमाम मसले आएंगे, पर जो मसला अहम है जिसके पीछे आज पूरा मुल्क 6 साल में पहली मर्तबा खड़ा हो गया है, सीए एनआरसी एनपीआर, जो उनकी लीडरशिप है, जो लोग कह रहे हैं जमीन पे, हम उनके साथ खड़े हों बिना कंडीशन के, खुली सॉलिडारिटी के साथ, बड़े दिल के साथ। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आगे की तैयारी करने की ज़रूरत है। सीए एनआरसी के मसले में हमने काफ़ी आगे एक तरह से कदम लेकर इस तहरीक ने सरकार को पीछे धकेल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट जाने, उसको मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, पर इस सॉलिडारिटी और इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए सरकार बहुत तेजी से कुछ और चीजें जो है करने जा रही है। उसमें से एक बड़ी चीज है जिसकी वजह से जो मूवमेंट है उसे लगता है कि शायद असर डाले, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हमें तमाम लोग जो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, तमाम कल्चरल ग्रुप हैं, डीएनटी कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल्स हैं, दलित्स हैं, उनके साथ जो भी लोग हैं हिंदुस्तान में लगभग 5000 से ज़्यादा कम्युनिटीज हैं, उन तमाम कम्युनिटीज के बीच बातचीत शुरू कर देनी चाहिए यूसीसी के मसले पे, साफ तौर पे इस ऐलान के साथ, इस समझ के साथ कि हमें इनेबलिंग लॉस चाहिए, हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थोपनी है इक्वालिटी के नाम पे, हमें इक्वालिटी चाहिए पर यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत आज हुई है, हमें उसको एनआरसी, एनपीआर, सीए, इसके आगे जो आने वाला खतरा है, सीधे इसको तोड़ने के लिए तहरीक को उसके ऊपर पहले ही कदम उठा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज की इस मीटिंग में मेरे को बोलने के लिए टाइम दिया है। मैं धर्मपाल कटारिया राजस्थान से आया हूँ। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी साहब को धन्यवाद, और मैं उनको निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। 29 मार्च को हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उनमें उनको हम चीफ गेस्ट रखना चाहते हैं, जिसमें 20,000 साधु संत और लाखों की संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज तक उन लोगों ने, हम जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, जो बात मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया, उन बातों का मैं पोस्टमार्टम नहीं करना चाहूंगा। मैं उन बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। अदीब साहब ने जो बोला, कर्नाटक से सईद सफी साहब ने बोला, बात सुप्रीम कोर्ट पे गई, और सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं? जो गंदी विचारधारा के लोग हैं,
जो शासन सत्ता में बैठे हैं, जो गंदी विचारधारा के लोग हैं, जिनको कोई मनुवादी कहता है, कुछ और कहता है, मैं गंदी विचारधारा के लोग कहता हूं, उन गंदी विचारधारा के लोगों ने जब बचना होता है तो वो कोर्ट की आड़ लेते हैं, कभी हाई कोर्ट की और कभी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, और चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे मूल ओबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, इन लोगों का प्रतिनिधित्व जीरो के बराबर है। और जब इनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो इनको न्याय कौन देगा? तो हमें मुकाबले में नहीं रहना चाहिए। इस लड़ाई को जो हम लड़ रहे हैं, सीए, एनपीआर, एनआरसी के विरुद्ध में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ ये तो मुद्दा उन्होंने दिया है, हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि ये चीजें तो खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और वहां हमारा जो इन्होंने बोला था कि आगे दोबारा कोई और मुद्दा नहीं लाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वहां हमारा प्रतिनिधित्व होगा तो वो कोई मुद्दा भी लाएंगे तो उनका मुद्दा फेल हो जाएगा। जो 2 अप्रैल को उन्होंने, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने या SC/ST एक्ट पे आंदोलन किया, उससे पहले हुकूमत ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, हम इसमें क्या कर सकते हैं। परंतु जब देश में आंदोलन हुआ 2 अप्रैल 18 को, तो हुकूमत को भी रूल चेंज करना पड़ा, बनाना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी दोबारा अपना फैसला बदलना पड़ा। ये आपके सबके सामने है। अगर हमारी मुस्लिम, ईसाई, सिख और SC/ST और मूल ओबीसी, और इसके साथ साथ भारतीय संविधान में विश्वास करने वाली किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, वो जो भारतीय संविधान के पक्ष में खड़ा है वो हमारे साथ में मानना पड़ेगा हमें, तो हमारी बात बन पाएगी। और अगर हम मुद्दे वो देते हैं और उन्हीं पे हम पक्ष विपक्ष में तर्क देते हैं तो वो कामयाब है और हम हार रहे हैं। इसलिए जो आज सदर साहब ने इधर बुला के और इस मीटिंग का आयोजन करके एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो उन्होंने मेरे को बोलने के लिए टाइम दिया है राजस्थान से, उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि बहुत बड़ा जो साधुओं का, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए हैं, उनका 29 मार्च का हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और उसके अलावा बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। तो मदनी सर से मैं निवेदन करूंगा कि उसमें चीफ गेस्ट के हैसियत से राजस्थान 29 मार्च को पहुंचे। इतने बात कहते हुए मैं मेरी बात तो यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। लक्ष्मण बाबू साहब, भास्कर प्रसाद My name is Bhaskar Prasad. I'm from Bangalore Rural District, Karnataka. I belong to Maliga community, which is a SC, scheduled caste. And this Maliga community is an untouchable community in Karnataka. Nowadays also it's going on, it's all here in India. And I am very happy to say our community is much thankful to Hazrat Tipu Sultan, who gave us employment and land rights to us. Before him we are very trouble and very bad condition in Karnataka. And I was in RSS from 20 years, for 20 years. So that's why I know all the faces of RSS. They are always giving a programs to agitate the people, and we are doing so. After this NRC, CAA and NPR, they are trying to bring the common civil code, and after that Manusmriti. So firstly, we the Dalits are 23% and Muslims are 17%, totally 40%. But the Modi government getting 31% votes, but we are 40%. How much we people are in parliament? This is the real problem. Once we get the power, we can eradicate all the problems of India. This NRC and CA and NPR are not only the problems of Muslims. It's the problem of 15 crore nomads.
8.5 crores of Adivasis, 3 crores of landless peoples, 1.7 crores of houseless peoples. It's nearly 30 crores, and it's 30 crores are not Muslims. This 30 crores includes SC, ST and OBCs. But this SC and ST, OBCs are not aware about this problem. But Muslims are aware. Only 2% of governments are capturing 1 or 3 MP seats in India. But we are Muslims and Dalits are 40%. But how much we are in parliament? This is the question. Thank you. Yes. Mr. Anil Apolya. नहीं मुझे नहीं मुझे बस एक ही सुझाव देना है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनको कैसे उनकी जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो अपनी डिमांड्स हैं, उनके साथ जोड़कर सीए का जो मसला है, एनआरसी का जो मसला है, उसको जोड़कर कैसे हम लोग कुछ उनको सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर ही विचार करना चाहिए। मुझे बस इतनी ही बात है। एक मिनट मुझे बोलने का। सब लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम बातें करते हैं तो SC ST यहीं पे हम रुकते हैं, तो SC ST और DNT है, वो DNT का पार्ट इस देश में करोड़ों के तादाद में है, लेकिन वो अनपढ़ है, पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनका नाम भी नहीं आप लोग लिखिए। ये SC है, ST है, उसके बाद DNT है, और DNT को उसके साथ में जोड़ो, तभी वो आप लोग हमारे लोग हैं उनको लगेगा कि हमारा हो जाए। एक बात है। दूसरा है कि हमारे जो भी लड़ाई है, हम जो भी अभी कर रहे हैं ये और इसके साथ बारे में, तो इसमें खाली SC ST OBC इतने लोग नहीं आ रहे हैं। जब भी मैं अपने गाँव में जा रहा हूँ और मैं घूम रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मराठा कम्युनिटी में, हमारे यहाँ मराठा कम्युनिटी में बड़ी कम्युनिटी है, तो उनमें भी 40% लोग ऐसे हैं कि उनके पास भी कोई कागज नहीं है। तो डीलर जो है उसके बाद में जो वर्कर्स है, तो उनके बीच में भी ये बहुत बड़ी तादाद से प्रॉब्लम है। उनके पास में रेशनिंग कार्ड है, बाकी के कार्ड मिलता है, लेकिन 50 साल का कोई पुरावा नहीं मिलता है, तो एविडेंस उनके पास में नहीं है। तो उनको इस लड़ाई में अगर हम शामिल कर लेते हैं तो भारत की 70% पॉपुलेशन इसमें कवर हो सकती है। और मैं अभी ये करने जा रहा हूँ कि मैं गाँव में जाता हूँ, गाँव में ये बात कर रहा हूँ कि अभी तक ये मुसलमानों को खड़ा किया है सामने RSS ने, तो ये झूठी बात है। RSS का जो भी उनकी जो वॉर है, लड़ाई है, वो मुसलमानों से ज्यादा हम लोगों से है। मुसलमानों के साथ पास में कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म तो रहेगा, उन्होंने संतुलित चला लिया, तो उनके पास कुछ तो मतलब रहेगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास में कुछ कागज दिखाने को नहीं है, करके हम पे बाइकआउट कर रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे और अपना मुंह भी नहीं खोलेंगे। कोविड के साथ आप असतर्कता चलाएंगे, इस तरह से आप अभी कैंपेन चला रहे हैं, तो इसको भी, इसके बारे में भी हम सब लोग सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे पहले कि नदी भाई बुलाएं, शॉर्ट ऑब्जर्वेशन के लिए मिस्टर बिगरमाल कहते हैं क्या? सर मैं दुर्गाराम गेदर राजस्थान से हूँ। राजस्थान में राजस्थान सरकार ने 24 और 25 जनवरी को 2 दिन का विशेष अधिवेशन बुला करके NRC, CAA और NPR इन तीनों के विरोध में संकल्प पारित किया है। इसके साथ साथ मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, और हमारा ये निवेदन है कि ये जो सरकार बार बार हम लोगों को आपस में डिवाइड करने का प्रयास कर रही है, ये तो मुद्दा हमारा है ही।
NPR, NRC तो मुद्दा है ही, लेकिन हमारी एक तो शासन प्रशासन में भागीदारी, इस पे भी हम ध्यान दें। और संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो काम हो रहा है, संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है, JNU जैसी जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय उनको खत्म करने का जो काम हो रहा है, इस पे भी इन सब मुद्दों पे हम लोगों को एक राय होना चाहिए। और SC, ST, OBC, DNT जितने भी ये समान विचारधारा के लोग हैं, हम सबको आपस में भाईचारे के लिए बकायदा कैडर कैंप, प्रशिक्षण शिविर, सेमिनार, इस तरह के हम लोगों को बार बार, जिस तरह से आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज जब आग लगी है तब हम कुआं खोदने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंसान जाके तभी सवेरा है। अब जब हमें कैंप में जाने की यानी दिक्कत आ गई कि कैंप में जाना पड़ सकता है, तब हम ये सोचने लगे कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हमें तो हम इन लोगों को, इन वर्गों को हमेशा ही आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लगातार ये प्रयास रहना चाहिए। और इसके लिए छोटे बड़े सेमिनार, मीटिंग और यानी इस तरह के बराबर होते रहने चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आम गाँवों के माध्यम से भी। और गाँव में हम ऐसा कैडर भी तैयार करें, ऐसे कुछ लोग भी तैयार करें, ऐसे जो कैडर कैंप दे करके इन वर्गों को आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए प्रयास कर सके। हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कासिम रसूलिया साहब। मेरा तो यह ख्याल था कि जो कमेटी आपने बनाई है उसकी रिपोर्ट सामने आ जाए तो उसके बाद तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं इसकी कोई मानवीयत नहीं है। कमेटी जो रिपोर्ट बना रही है, जिसको आपने कुछ दिया है बनाने के लिए, उसकी रिपोर्ट सामने आए, उसमें हजारों इजाफे के वक्त में कुछ बात रखूंगा। नदीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अनवर पाशा, IAS रिटायर्ड फ्रॉम कर्नाटका। जी मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ अब तक, फिर भी मौका मिला है तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अगर कुछ इसमें रखते हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर हालात में तो हिंदुस्तान में एजुकेशन चल रहे हैं, लिटिगेशन भी चल रहे हैं, बायकॉट की बातें भी चल रहे हैं वगैरह वगैरह। मेरा अपना एक ख्याल है कि इतनी इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंटेलेक्चुअल गैदरिंग है, ये इंटेलेक्चुअल क्लास जो है गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, पहले भी डायलॉग हुआ होगा, एक डायलॉग से साथ हल करें तो मसला अच्छा रहेगा, मेरी अपनी राय है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बुलाई गई है और ये तकरीबन 3-4 महीनों से लगातार पूरे मुल्क में इसका माहौल चल रहा है, एहतजाजात चल रहे हैं। लेकिन अब ये वक्त आया कि इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला लेना कि NPR का बायकॉट किया जाए या क्या जो भी हो। लेकिन अब जो फैसला लेना है इसको जल्दी लेना चाहिए, इसलिए कि ये गिरोह लेवल तक ये बात पहुंचे। दूसरी एक मेरी हमारे सारी समाज के लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट दरखास्त है कि ये आंदोलन जब भी चल रहा है तो जहाँ मुसलमान खड़े हो रहा है वहाँ हमारे दूसरे समाज के लीडर हजरात खड़े रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ आवाम भी खड़े होना चाहिए, तो उससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। उसके जरिए से वो भी गिरोह लेवल के जो लोग हैं, देहातों में जो लोग हैं वो भी खड़े होंगे, वो भी बायकॉट में मदद करेंगे। बस ये दो बात। अच्छा आपने कुछ नहीं बोला, खाली पहले उधर यस पहले उधर प्लीज, सॉरी ये पूछा था, आप नहीं बोल पा रहे। यस प्लीज Kerala. Yes, sir. Yes. You are Kerala here. Yes. The preamble of the Constitution is of identity. And there are 6 anthropological races here. 9 religions are in our country. 2 years to be the foundations on which the preamble is built. All is going to be hijacked now. And therefore it is all of might we should resist and protest. And not be
the camera inside. Probably quite a display should take place in a public medium, so that those are giving the oath by the Constitution, and especially by the preamble, they are violating the oath, and this is the oath they have taken, that they will defend this Constitution and based upon the preamble. And so serious, so secular, democratic. The pillar of the regularly being removed, and therefore I think the whole nation should protect against particular CA law, which is exclusive and restrictive of our preamble assertion. And therefore I think we will have a solution and getting this one, and pushing the whole nation by freedom, so that we are able to be maintaining our identity. Thank you. Yes, thank you. Thank you very much for giving me that. मैं सिर्फ 6 पॉइंट्स पे बात करूँगा वो चीज़। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एनपीआर बिल्कुल सर पर है, तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर हमें प्रेशर देना है, तो उसके लिए हम लोग लेटर्स लिखें जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, एमएलएस को, मिनिस्टर्स को जाके लेटर दें और उन लेटर्स को देते टाइम फोटो खींचे, उन फोटोज को वायरल करें सोशल मीडिया पर, ताकि वो कल को ये ना कहें कि हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया या हमें इसके बारे में बोल दिया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई कैन वी फाइट विद आवर मुस्लिम आइडेंटिटी ऑन दिस इश्यूज, एंड मेरा बहुत स्ट्रांग इस पे ये कि हमें अपनी आइडेंटिटी के साथ इसको लीड करना चाहिए, जो कि हमारे कम्युनिटी लीडर्स है और बाकी सब लोग उसमें साथ में आते रहे। थर्ड इज इंटरनेशनल लॉबिंग, अभी हमारी तरफ से शायद कुछ नहीं हो रही है, यूएन है, ईयू है, ओआईसी है, अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस है, और स्पेशली उन कंट्रीज में हमें लॉबिंग करनी चाहिए जहां जो इंडिया के बिग टाइम बायर्स है, या इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, ताकि हम लोग को प्रेशर जो है उस पर बिल्डअप कर सके, क्योंकि आरएसएस अभी बहुत एग्रेसिवली स्पेशली यूरोप और अमेरिका में लॉबिंग कर रहा है ताकि वहां कोई एंटी सीए या एंटी इस तरह का माहौल ना बन पाए, लेकिन कोशिश हमारी तरफ से भी यहाँ से जानी चाहिए इंडिया से। थर्डली मैंने पहले भी दो मीटिंग में कहा इस बात को, इंटरनेशनल मीडिया में पहले बहुत अच्छा पिकअप करा था इस इशू को, लेकिन पिछले 1 महीने से देखने में आ रही है इंटरनेशनल मीडिया बहुत स्लो डाउन हो गया, तो वी नीड टू चेक आवर कॉन्टैक्ट्स आल्सो विद इंटरनेशनल मीडिया के उसमें क्या कर सकते हैं, कोई नई स्टोरीज नए बना के वो थोड़ा करना चाहिए। सेकंड और इसके अगला है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत वीक है, कि हम लोगों ने ना कोई होर्डिंग नहीं लगा रहे हैं, ना कोई पोस्टर्स लगा रहे हैं, ना कैप बांट रहे हैं, ना बैचेस बांट रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो इसमें हम सब लोगों को कॉमन लोगो या कोई कॉमन बोर्ड देके तो करना चाहिए। इसमें हमें शहरों में अलग अलग जगह जाके बड़े बड़े होर्डिंग बनाए कि हम एनपीआर का विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं, ताकि कॉमन्स को कम्युनिटीज को एक मैसेज आए, क्योंकि प्रो में बहुत कुछ हो रहा है, एंटी सीए और या एंटी एनपीआर में कोई भी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सड़क पे दिखे, कैप्स हैं, बैचेस हैं, छोटे छोटे काम है जो हम कर सकते हैं। एंड एक होर्डिंग हम एक आइडिया है, लास्ट पॉइंट है कि हम ऐसे होर्डिंग्स वहाँ लगा सकते हैं कॉलेज के बाहर, फॉर एग्जाम्पल मैं खुरेजी में रहता हूँ, तो एक होर्डिंग से क्लियर मैसेज हो कि हम खुरेजी के निवासी एनपीआर का विरोध करते हैं और किसी भी कोई भी सरकारी अधिकारी हमारे मोहल्ले में ना आए एनपीआर के कागजात को फॉर्म्स को भरवाने के लिए, और उसके नीचे से उसका नाम लिखेंगे आदेशानुसार खुरेजी निवासी। तो अगर इस तरह के 10, 15, 20 हजार होर्डिंग्स अलग अलग मोहल्लों में लगा हुआ है तो इससे बहुत एक अच्छा इफेक्ट है। थैंक यू। विरोध करते हैं, क्यों करते हैं? 4-5 पॉइंट्स वो कर सकते हैं। थैंक यू। जो ओएस ने बात करी, फारूक भाई ने बात करी, मेरा नवीन है उसे कंटिन्यू करूँ। पहला तो हम लोगों ने साथ संपर्क को किया था, उसके बाद कंट्री वाइज हमारी पूरी टीम घूम रही है, बात कर रही है, तो मैसेज ग्राउंड में तो ये क्लियर है कि हमको एनपीआर का बाइकआउट करना है, और उसकी वजह से ही आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे हो रहा है, उसमें लोगों की पिटाई भी हुई है, कई जगह कमरे में बंद कर दिए गए सर्वे, और उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं रहा। लेकिन अगर हम बियॉन्ड द इमोशंस आगे आकर बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पर बाइकआउट बहुत मुश्किल है, मैक्सिमम 10%, 8% से ऊपर नहीं आने वाला। अगर स्टेट बाइकआउट को देखते हैं तो स्टेट बाइकआउट को कैलकुलेट कर लेते हैं तो केरला और बंगाल को ऐड ऑन करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन 8% है। इंडिविजुअल बाइकआउट कैलकुलेट कर लेंगे तो 5% से ज्यादा नहीं होगा, तो 12-13% का बाइकआउट का मतलब है कि आप अपनी प्रोफाइलिंग करा रहे हैं।
अगर जब तक हम इनमें कांग्रेस रूल्ड स्टेट को बंगाल और केरला के साथ इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 40% बनती है, उसके बाद में अगर हम इंडिविजुअल बाइकआउट करा ले जाए 5-7% का, तो 50-50 के आसपास के रेशियो हम आते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ कोई डिसेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा। कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, ना डिसेंट उनको दे रहे हैं, और उनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी का पूरा प्रेशर है कि हमको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब तक हम हार्ड कोर लेवल पे जाकर कांग्रेस की जितनी भी सरकारें चल रही हैं, जो लगातार फ्लिप फ्लॉप खेल रही हैं, या टीआरएस का सरकार है, उसको प्रेशर लेकर स्टेट बाइकआउट का अनाउंसमेंट नहीं कराएंगे, तब तक इंडिविजुअल बाइकआउट के कोई मायने नहीं है। सिर्फ 4-6% लोग आखिरी में बाइकआउट करेंगे और उनकी प्रोफाइलिंग एंटी-आरएसएस, एंटी-बीजेपी हो जाएगी। तो हमको यहाँ से कम ये तय करना चाहिए कि जितने भी टैक्टिक्स हैं, एडवोकेसी से लेकर प्रोटेस्ट के अंदाज तक, स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको प्रेशर में लें, क्योंकि एक तरफ वो सीए का बिल पास कर रहे हैं जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं सिंबोलिज्म के अलावा, और एनपीआर पर पैसा इशू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाकायदा एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग चल रहा है। अगले हफ्ते से पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे विदिशा डिस्ट्रिक्ट में उनका काम शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो बाइकआउट का अनाउंसमेंट है वो सिर्फ एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, जो कि स्टेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। मध्य प्रदेश में सीए के खिलाफ उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। हमको पता है जैसे ये शुरू हुआ तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटका में काम शुरू हुआ। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे पायलट प्रोजेक्ट होगा। तो मध्य प्रदेश का वो पायलट प्रोजेक्ट का डिस्ट्रिक्ट विदिशा है। विदिशा में सबसे पहले एनपीआर का काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। अगर हम अभी सीए के डिस्कशन को थोड़ा सा बैक ट्रैक पे लाके फ्रंट एंड पे एनपीआर पे बातचीत कर लें तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इंडिविजुअल बाइकआउट के बहुत मायने नहीं जब तक स्टेट बाइकआउट नहीं। अच्छा, पहले आप सभी भागीदार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विशंबर पटेल इलाहाबाद से। मेरा उससे एक ही आग्रह है और सुझाव कि जो कैंपस विश्वविद्यालयों के विरुद्ध जो इंटेलेक्चुअल्स और स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में कोई माननीय अगुवा यहाँ से हम लोग आपस में इन्वॉल्वमेंट के लिए जो पूर्व अध्यक्ष वगैरह हम लोग चूँकि उनसे तमाम जो मसाइल हैं उसमें उन लोगों की भागीदारी रहती है, लेकिन उनको अभी आंदोलन को अखबारी जैसे इलाहाबाद में हम लोग क्या रोशन बाग में आंदोलन चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, जैसे सब जगह चल रहा है, लेकिन जो विश्वविद्यालयों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग उसमें अखबारों तक सीमित है, लेकिन उनके साथ एक एसोसिएशन नहीं हो रहा। तो कोई ऐसी पहल हम लोग उनके साथ दे पाए जहाँ से माननीय लोग कोई ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग वहाँ शामिल करा पाए जिससे उनकी सक्रियता और उनका भरोसा जो निचले स्तर से आंदोलन में लोग आ रहे हैं उनकी कंटिन्यूटी बन सके, जिससे वो आंदोलन का स्वरूप जो है और ज्यादा निखर करके और काम करने वाले लोगों को एक ऊपर से बड़ा धस्त एक भरोसे का माहौल नियमित बन सके। मेरा एक यही सुझाव कि यहाँ से कोई एक व्यक्तित्व जिससे वह कोई कार्यक्रम नहीं जिससे उनके पास जो गैप है उसको हम लोग पूरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी को मेरा सलाम आदाब। बहुत सी बातें यहाँ आ गई हैं, खासतौर से अमीश राय साहब ने कुछ बातें कही कहना चाहता था और अदीब साहब ने भी कुछ बातें ऐसी हैं उसमें जो मैं कहना चाहता था। एक दो बातें मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि इस वक्त जो ये प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं पूरे देश में वो किसी के ऐलान पर नहीं चलेंगे और न ही किसी के कंट्रोल से ये कंट्रोल हो रहा और न ही कोई इसका लीडर है और यही इसकी ताकत है। और आज़ादी के बाद शायद ये पहला प्रोटेस्ट है जो इतना ज्यादा नॉन वायलेंट है और सिर्फ नॉन वायलेंट ही नहीं बल्कि इसने अखलाक और किरदार और पेशेंस और सब्र का वो मयार तय कर दिया है जिसको पहुंचना शायद और लोगों के लिए मुश्किल होगा। यानी इतने ज्यादा उकसावे के बावजूद, भड़कावे के बावजूद, गोलियां चलने के बावजूद लोगों ने कितना पेशेंस रखा और धैर्य रखा और ये एक मिसाल इसमें कायम हुई है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ
कि ऐसा लगता है कि सरकार शायद पीछे नहीं हटेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोटेस्ट भी बहुत लंबा चलेगा, ना हमारे रोकने से रुकेगा। अगर हम रुकना भी चाहें, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कि ये मसला पूरी तरह हल नहीं हो जाता। हमारा रोल सिर्फ इतना हो कि हम इसका साथ दें, इसको हर साजिश और शरारत से बचाने की हम कोशिश करें, और इसकी ताकत को हम बढ़ाने की पूरी तवज्जो करें। दूसरी बात इसमें ये आनी चाहिए, जो आ भी रही है और अब हमें भी लगा है, कि मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग भी अब बड़ी संख्या में इन प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। यहाँ एक बात और, हमें डायलॉग चाहे वो सरकार से हो और जनता से तो हमें बातचीत करनी है, जनता तक तो ये बात जानी ही चाहिए। 138 करोड़ की जो हमारी आवाम है उसको इसमें इंक्लूड कैसे किया जाए और उसका सपोर्ट कैसे मिले। लेकिन हमें डायलॉग का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। अगर सरकार हमसे बात करना चाहे तो हम तैयार रहें, और पूरी तैयारी के साथ हम तैयार रहें कि क्या बात की जाएगी, कैसे की जाएगी। अगर बात करने की उनकी तरफ से पहल हो तो हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेरा एक मानना यह है कि आगे चलकर सरकार शायद यूपी सरकार की तरह सख्ती और पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ज्यादा यूपी में दमनकारी जो नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। उसका जवाब मेरे ख्याल में यह है, दमन के जवाब में लोगों को बड़ी संख्या में बाहर आना चाहिए। इसके अलावा और कोई जवाब दमन का नहीं है कि जनता आवाम जो है बड़ी संख्या में जितना दमन हो उससे ज्यादा बाहर है। हमको तो पूरे भारत से वार्ता करनी है और पूरे भारत को इसमें शरीक करना है। जैसा कि अमरीश नायक जी ने भी कहा और मेरा भी ये विचार है कि ये एक तरह से भारत की आजादी की लड़ाई है। हमको एक तरह से भारत को इन फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस से आजाद कराने की जरूरत है। तो कम्युनिकेशन हमारा पूरे देश से होगा और हमारी स्ट्रेटेजी इंक्लूसिव होनी। इनकी स्ट्रेटेजी एक्सक्लूसिव है, बांटने की, छांटने की, ये नहीं होंगे वो नहीं होंगे। हमारी स्ट्रेटेजी है कि पूरा भारत इसमें शरीक है। यकीनन जो कमजोर लोग हैं, हमारे दलित भाई हैं और आदिवासी हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा इससे परेशान होंगे, लेकिन हमको पूरे देश को शामिल करना है। यहाँ तक कि मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमें आरएसएस और बीजेपी में जो लोग हैं उनको भी उससे बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। उनसे भी कुछ लोगों से बात करके उसको सीए और हम जिस लाइन पर हैं ये बताना चाहिए कि देश को कितना बड़ा खतरा है। और ऐसा नामुमकिन नहीं है, बहुत से लोग हैं जो हमारी कोशिशों से हमारी तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इस पूरे मामले में बहुत अहम होगा। हमको पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बराबर बात करनी चाहिए। उनको सिर्फ ये मान के नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये हुकूमत के टूल्स हैं, बल्कि हम उनको एज ए सिटीजन उनको हम एड्रेस करें कि ये मसला आज आप सरकार के हुक्म पर हमारे ऊपर लाठियां गोलियां चला रहे हैं, लेकिन आप इस देश के नागरिक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि देश खतरे में है, आपका रोल क्या होना चाहिए। मुझे लगता है उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी और हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा। मैं बस इन्हीं बातों के, सरकारों पर दबाव बनाने की बात आ चुकी है, उस पर हमें जोर देना चाहिए कि जो सरकारें हैं, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ बीजेपी की सरकारों से भी अगर हम बात कर सकते हैं तो उनसे भी बात करनी चाहिए कि उनको भी समझाएं कि ये एनपीआर, सीए, एनआरसी का विरोध हम क्यों कर रहे हैं और क्यों एनपीआर नहीं चाहते। तो कांग्रेस सरकार या दूसरी सरकारों के अलावा बीजेपी की सरकारों से भी अगर बात कहीं मुमकिन है तो जरूर उन तक बात पहुंचनी चाहिए, चाहे वो माने या ना माने। जो हमारे आसपास जो बात कही जा रही है ये है कि भाई जैसे कश्मीर के अंदर हिंदुओं की प्रॉपर्टी को हिंदुओं को निकाल करके वहाँ घाटी में थे, उनकी प्रॉपर्टी पे वहाँ के मुसलमानों ने कब्जा किया। ऐसे ही सीए ला करके हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे कब्जा क्यों ना कर लें।
तो ये हवा सी चल रही है और ये सब लोगों को समझाया जा रहा है कि सब मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे और उनकी प्रॉपर्टी पर हरकत हो जाएगी। तो हिंदू बहुत खुश है इसकी हमें लड़ाई लड़नी है। हम देख रहे हैं कि सामंती सिस्टम था, एक राजा दूसरे राजा को बढ़ाता था प्रॉपर्टी के लिए। आज पूंजीवाद है, पूंजीवाद में एक दूसरे को इंपीरियलिज्म हावी है, अमेरिका आ रहा है। तो ये आर्थिक लड़ाई, कोई आर्थिक का फायदा दे करके दिखा करके ये एक दूसरे पर हमला करवा रहे हैं और इसमें हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें ये ऐड करके नहीं, हमें जो है प्रोग्राम करने चाहिए। एक एक शहर में आप लोगों की मतलब जो होता है कि भाई घर का जो भी लोग ना रहा गाँव का सीट, तो ये होता है कि जब बाहर से कोई आदमी आएगा तब जा करके ज़्यादा पब्लिक पर असर पड़ेगा। तो आप लोग प्रोग्राम बनाएं, हम लोगों को दें और हम आप लोगों को अलाउ बंद कर दीजिए, उधर से माइक दे दीजिए जरा तेज सिंह साहब को। ये दे दीजिए अपना, हाँ यही दे दीजिए बस। आम शिकायत जो सुनने में आ रही है जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है साइनबान और पूरे देश में साइनबान हो रहा है, उसमें जो आजाद लड़कों की किशोरों की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इससे सहमत हूँ कि एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम भी होना चाहिए डीप हेड कंप्लेंट के हिसाब से और लोकल एनजीओ को कन्वीनेंस में लेके अपने लोगों की लोकल एनजीओ को कन्वीनेंस में लेके इस प्रोग्राम को कराना चाहिए। और रथ यात्रा का प्रोग्राम किया है अवेयरनेस करने की वजह से हम लोग को डिस्कशन मिलना चाहिए, मास मूवमेंट में होना चाहिए, मास मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसको एक जनरल जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम चला जाए और लोगों को जो एनजीओ है उनको इसको किया जाए और ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह हम इसको लेकर आगे बढ़ाएं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि नाम के बारे में बता दीजिए। आसिफ हमदार नबी कानपुर से एनपीआर के बारे में जो हमारे वैस भाई ने और नदीम भाई का अवामी सतह पर एक बयानिया तय है पूरे हिंदुस्तान में। सवाल ये है कि हम उस बयानी को मजबूत कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट हैं। आवाम आमतौर से ये पूछती है कि गाबरीन की राय क्या है, अभी तक खामोश क्यों है। तो बड़ों की तरफ से वाज़ेह बयान होना चाहिए कि देखो क्या सोच रहे हैं। आपको सब पता है उनकी मंफी और निगेटिव और पॉजिटिव थॉट के बारे में। पिछले 2 महीनों में जब से ये तहरीक चल रही है तो मैं निचली सतह पर रहता हूँ तो जानता हूँ इस बात कि बड़ों के ताल्लुक से बेहद मनफी जहनीत बनी है हमारे आवाम की। उसको रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उस पर आपको सोचना चाहिए और वाज़ेह स्टैंड आना चाहिए कि आवाम बदतनी की जिस सतह पर इस वक्त पहुंची हुई है उससे वो निकले। डॉक्टर जफर खान साहब की राय बहुत मजबूत है, प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि न सिर्फ जारी रहना चाहिए बल्कि मुख्तलिफ और मकामात पर बड़े पैमाने पर इसका इंतजाम होना चाहिए। एनपीआर के बाइकाट की जो उमूमी अपील है वो तो जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो राय जाहिर की है हुकूमत से बात करने के लिए हमारे पास मुद्दे होने चाहिए कि हम हुकूमत से किन ग्राउंड पर बात करेंगे और उसके लिए हुकूमती सतह की कोशिश होनी चाहिए जो आवाम से अलग, आवाम के सामने हमारा एक बयानिया वाज़ेह जाना चाहिए। भाई साहब कहता दलितों को शामिल करने की बात, जाहिर है कि दलित हमारे साथ कम शामिल हो रहे हैं लेकिन वो होंगे, उनके लिए हमें मजबूत लाहेमत करना होगा और वो गलतियां जो माजी में बार बार दोहराई गई हैं आइंदा नहीं हो ऐसी गलतियां, ताकि वो लगातार साथ में बने रहे। नॉर्थ इंडिया में खासतौर से यूपी और बिहार में, बिहार की सतह पर, गाँव की सतह पर हमारे पास ऐसी टीम जो वेल ट्रेंड हो, एनपीआर वगैरह के ताल्लुक से इलाही मुहिम चलाए, इनको उस वक्त तक उन इलाकों में पड़े रहना चाहिए जब तक इस मसले का कोई मुस्बत हल न निकला है। और एक राय ये थी कि जो हेड स्पीचेस आती हैं आमतौर से बहुत बड़े पैमाने पर आती है लेकिन हमारी तरफ से उस पर कोई मुकदमा वगैरह नहीं होते हैं, तो
को हमारे